اس میں جو ہمارے پاس جو مین رول پڑھنا ہے جس چیز کا، وہ ہمارے پاس جینز، ڈی این اے اور کروموسوم کے بارے میں جو ہے وہ ہم لوگ پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں انٹروڈکشن ہمارے پاس جینیٹکس کا کیا ہے۔ اس کے انٹروڈکشن کے اندر ہمارے پاس سب سے پہلے جو ڈیفینیشن آتی ہے وہ ہے جینز کی، ہمارے پاس جو ڈیفینیشن سب سے پہلے آتی ہے وہ ہے جینیٹکس کی۔ تو جینیٹکس ہمارے پاس کیا ہے؟ اسٹڈی آف جینز، جینز کی اسٹڈی اینڈ دیئر رول، اور جینز کا رول انہیریٹنس کے اندر۔ جینیٹکس کے اندر ہم اسٹڈی آف جین کرتے ہیں، اور جینز کا رول وراثت کے اندر کیا ہے وہ ہم اسٹڈی کرتے ہیں جینیٹکس کے اندر۔ تو اب ہمارے پاس جینز کیا ہیں؟ جین کیا ہے؟ جین ہمارے پاس یونٹ آف انہیریٹنس ہے، وراثت کا یہ یونٹ ہے۔ اب انہیریٹنس مین کیا ہے؟ ہم نے 9th کلاس کے اندر بھی پڑھا تھا۔ انہیریٹنس مین ٹرانسمیشن آف کریکٹرسٹکس فرام پیرنٹس ٹو آف اسپرنگس، کہ والدین سے خصوصیات کا منتقل ہونا بچوں کے اندر، اسے ہم کہتے ہیں انہیریٹنس۔ اب ہمارے پاس جو خصوصیات والدین سے بچوں کے اندر منتقل ہوتی ہیں، ان خصوصیات کو ہم کہتے ہیں ٹریٹس۔ اب وہ ہمارے پاس خصوصیات کون کون سی ہیں جو والدین سے بچوں کے اندر منتقل ہوتی ہیں؟ وہ انسان کی ہائٹ بھی ہے، اور اس کی آئز کا کلر ہے، اس کی انٹیلیجنس ہے، ہیئر کلر ہے، بلڈ گروپ ہے، ٹنگ رولنگ ہے۔ یہ سارے کریکٹرز جو ہے وہ والدین سے بچوں کے اندر جو ہے وہ منتقل ہوتے ہیں۔ ان کریکٹرز کو کہہ دیتے ہیں ہم لوگ ٹریٹس۔ اب ہمارے پاس یہ جو کریکٹرز ہیں جو والدین سے بچوں کے اندر منتقل ہوتے ہیں، ان کو منتقل کرنے والی جو ہمارے پاس رسپانسیبل ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں ہمارے پاس جینز، جو ہیں وہ رسپانسیبل ہوتی ہیں۔ اور جینز جو والدین سے بچوں کے اندر جس پروسیس کے اندر منتقل ہوتی ہیں، اس پروسیس کو ہم لوگ کہتے ہیں فرٹیلائزیشن۔ تو فرٹیلائزیشن کے پروسیس کے لیے سب سے پہلے ہمارے پاس والدین فیمیل ہوتی ہے، میوسس کا پروسیس ہوتا ہے، اس میں 23 کروموسوم آتے ہیں تو پروسیس آف میوسس، اور جو پیرنٹ ہوتا ہے ہمارے پاس جو فادر ہوتا ہے، اس کے اندر سے 23 کروموسومز آتے ہیں تھرو پروسیس آف میوسس۔ یہ دونوں جس پروسیس کے ذریعے ہمارے پاس 23 مدر کے کروموسوم اور 23 جو ہے وہ فادر کے جو کروموسوم جس پروسیس کے ذریعے کمبائن ہوتے ہیں، ملتے ہیں، اس پروسیس کو ہم لوگ کہتے ہیں فرٹیلائزیشن۔ اور فرٹیلائزیشن کے پروسیس کے اندر ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں؟ زائگوٹ بنتا ہے، اور زائگوٹ کے نتیجے کے اندر ہمارے پاس ٹوٹل 46 کروموسوم بنتے ہیں، 46 کروموسوم بنتے ہیں۔ اور اگر ہم اس کو ہومولوگس پیئرز کی فارم کے اندر دیکھیں تو ہمارے پاس 23 بنتے ہیں۔ تو یہ جو والدین سے خصوصیات، والد سے اور والدہ سے جو نیو انڈیویجول کے اندر منتقل ہو رہی ہیں، اس کو ٹرانسفر کروانے کے لیے جو چیز ہمارے پاس رسپانسیبل ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جینز، جو ہیں وہ رسپانسیبل ہوتی ہیں۔ ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں ہم لوگ جینز کی، کہ ہمارے پاس یہ جین موجود ہے کروموسوم کے اوپر، اور یہ جین رسپانسیبل ہے ہمارے پاس آئی کلر کو ٹرانسفر کرنے کے لیے۔ جس طریقے سے ہمارے پاس یہ جین موجود ہے، اور جین جو ہے وہ کاپی ہو رہی ہے میسنجر آر این اے کی فارم میں، اور میسنجر آر این اے سے وہ پروٹین بن رہی ہیں، اور وہ پروٹین ایکسپریس ہو رہی ہیں، اور ہمارے پاس یہاں پر ٹریٹ جو ہے وہ شو ہو رہا ہے۔ ہمارے پاس آئی کلر جو ہے وہ شو ہو رہا ہے، اور وہ آئی کلر کیسے شو ہو رہا ہے؟ ہمارے پاس براؤن کلر جو ہے وہ شو ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہیئر کلر ہے، ہیئر کلر کو کنٹرول کرنے والی یہاں پر جینز موجود ہیں کروموسوم کے اوپر، اور یہ جینز جو ہیں وہ ہمارے پاس کاپی ہوں گی ان دا فارم آف میسنجر آر این اے۔ یہ ہمارے پاس میسنجر آر این اے موجود ہے، اس کے اندر تمام انفارمیشنز موجود ہیں، یہ کروموسوم ہے اس کو ریڈ کرے گا اور پروٹین بنائے گا، اور اس پروٹین کے نتیجے کے اندر ہمارے پاس یہ جو ہیئر کلر ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ ہیزل یہاں پر لکھا ہوا ہے اس نے ہیئر کلر، ہمارے پاس یہ جو کلر ہمیں نظر آ رہا ہے، تو اس کو کنٹرول کرنے والی جو ہیں وہ جینز ہیں۔ تو ابھی ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس جو جینز تھیں، ہمارے پاس یونٹ آف انہیریٹنس جو کیا کنٹرول کر رہی ہیں ہمارے اندر
ट्रेड्स को कंट्रोल कर रही है। और एक बात और यहाँ पर बताता चलूँ कि जो हर ट्रेड होता है उसको कंट्रोल करने वाली जो जीन्स हैं वो मुख्तलिफ होती हैं। जिस तरह हमने ये एग्जाम्पल के अंदर देखा, आइज को कंट्रोल करने वाली जीन्स और हैं, और आपके हेयर कलर को कंट्रोल करने वाली जीन्स जो हैं वो हमारे पास और हैं। तो हर जीन्स के पास मुख्तलिफ प्रोटीन बनाने वाली इंफॉर्मेशन जो हैं वो मौजूद होती हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्रोमोसोम और जीन्स के बारे में। हमारा जो जीन्स हैं, ये एक्चुअली जो जीन्स हैं ये कंसिस्ट ऑफ डीएनए पर जो है वो मुश्तमिल होती हैं। जीन्स कंसिस्ट ऑफ डीएनए, ये मैं बात आपको बताता चलूं कि हमारे पास जो जीन्स होती हैं वो डीएनए पर जो है वो मुश्तमिल होती हैं। और जो डीएनए होता है वो किसके अंदर मौजूद होता है, हमारे क्रोमोसोम्स के अंदर जो है वो मौजूद होता है। आगे हम जो है वो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर भी देखेंगे, जीन्स के बारे में भी देखेंगे वीडियोस के अंदर जो है, और उसके अलावा हमने उसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन्स के बारे में जो है वो भी जिक्र देखेंगे। तो हमारे अंदर जो ह्यूमन सेल्स होते हैं उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, हमारे पास 46 होते हैं, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अगर हम उसको पेयर फॉर्म के अंदर देखें तो हमारे अंदर 23 पेयर्स जो हैं वो बनते हैं। उन पेयर्स को हम लोग कहते हैं होमोलोगस पेयर जो हैं वो कहते हैं। अब ये जो क्रोमोसोम्स हैं जिस डिवीजन के अंदर सेपरेट होते हैं उस डिवीजन को हम कहते हैं मियोसिस। अभी जो हमने डायग्राम पीछे देखी थी जिसमें हमारे पास स्पर्म बन रहे थे और एग बन रहे थे, जिस प्रोसेस के जरिए बन रहे थे उस प्रोसेस को हमने नाम दिया था मियोसिस का। या जिस डिवीजन के जरिए हमारे पास क्रोमोसोम्स की सेपरेशन होती है उस प्रोसेस को हम कहते हैं मियोसिस। और मियोसिस के नतीजे में हमारे पास एग सेल बने थे, स्पर्म बने थे, और दोनों दोबारा क्रोमोसोम जो है वो कंबाइन हो रहे थे और दोबारा हमारे पास 46 क्रोमोसोम जो है वो मेंटेन हो रहे थे। तो जीन्स क्या है हमारे पास, जीन्स के अंदर एक्चुअली हमारे पास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो है वो मौजूद होती हैं, हदायत मौजूद होती हैं। जैसे अभी हमने पीछे देखा हेयर कलर्स के लिए जो है वो इंफॉर्मेशन मौजूद थी जीन्स के पास, आइज कलर के लिए मौजूद थी, टंग रोलिंग के लिए मौजूद थी, इंटेलिजेंस के लिए जो है वो इंफॉर्मेशन वगैरह जो है वो मौजूद थी। अब जो जीन्स हैं वो एक्चुअली आपका डीएनए बनाती हैं, और जो डीएनए है वो किसके अंदर मौजूद होता है, आपके क्रोमोसोम्स के अंदर जो है वो मौजूद होता है। अब जो क्रोमोसोम्स हैं वो कहता है कि ये बने होते हैं आपके पास क्रोमाटिन मटेरियल से। एक्चुअली क्रोमोसोम और क्रोमाटिन मटेरियल के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, जस्ट यहाँ पर जो इसकी शेप्स होती हैं, क्रोमोसोम जो है वो हमारे पास रेगुलर फॉर्म के अंदर होता है और जो क्रोमाटिन मटेरियल होता है हमारे पास इर्रेगुलर फॉर्म के अंदर मौजूद होता है, मतलब ओपन फॉर्म के अंदर मौजूद होता है। जस्ट ये डिफरेंस है, शेप्स का जो है वो डिफरेंस है, लेकिन इंफॉर्मेशन दोनों के अंदर सेम ही होती है। अब जो क्रोमाटिन मटेरियल है ये किससे बना होता है, हमारे पास डीएनए से बना होता है और हिस्टोन प्रोटीन से जो है वो बना हुआ होता है। अब हमारे पास एक डेफिनेशन आती है न्यूक्लियोसोम की, डीएनए का रैपिंग कर जाना हिस्टोन प्रोटीन के इर्द गिर्द, डीएनए की रैपिंग हो जाना, लिपट जाना हिस्टोन प्रोटीन के इर्द गिर्द, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम, और ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी आता है। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास मौजूद है, न्यूक्लियोसोम का, क्रोमोसोम्स का और क्रोमाटिन मटेरियल जो है उसके बारे में हम देखते हैं। तो ये एक कंप्लीट स्ट्रक्चर जो हमें नजर आ रहा है, जो रेगुलर स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इस रेगुलर स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं क्रोमोसोम कहते हैं। और इसके अंदर हमारे पास दो क्रोमाटिड्स मौजूद हैं, एक ये क्रोमाटिड मौजूद है और एक हमारे पास ये क्रोमाटिड जो है वो मौजूद है। तो हमने इसको डीपली जो है उसके स्ट्रक्चर को जब हम देखते हैं तो हमारे पास इस फॉर्म के अंदर ये स्ट्रक्चर नजर आता है, मतलब कि एक धागे की तरह का स्ट्रक्चर नजर आता है जो यहाँ पर एक्चुअली हमारे पास कंडेंस होकर क्रोमोसोम के अंदर चेंज हुआ है। अब ये जो हमारे पास धागा है ये एक्चुअली हमारे पास क्या मौजूद है, हमारा जो है वो डीएनए मौजूद है। ये सारा जो आपको राउंड फॉर्म के अंदर स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये एक्चुअली हमारा जो है वो डीएनए मौजूद है। और ये डीएनए जिस
प्रोटीन के ऊपर लिपटा हुआ है उस प्रोटीन को हमने नाम दिया हुआ है हिस्टोन प्रोटीन। अब डीएनए की जो रैपिंग है हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर, अभी हमने पीछे बात भी की, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। जैसे ये डायग्राम के अंदर हमें नजर आ रहा है कि डीएनए की जो रैपिंग है हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर, उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमारा जो डीएनए है एक तो प्रोटीन के ऊपर भी मौजूद है और दूसरे नंबर पर दो न्यूक्लियोसोम्स के स्ट्रक्चर्स के दरमियान में मौजूद है। एक तो हमारे पास एक पूरे स्ट्रक्चर को हमने नाम दे दिया न्यूक्लियोसोम का, एक न्यूक्लियोसोम ये है, ये भी न्यूक्लियोसोम है, ये भी न्यूक्लियोसोम है, ये भी, और ये भी हमारे पास न्यूक्लियोसोम्स ही मौजूद है। अब डीएनए जो प्रेजेंट है हमारे पास बिटवीन न्यूक्लियोसोम, ये ऐसे नजर आता है हमारे पास जैसे तस्बीह के दाने नजर आते हैं। और जिस तरीके से हमारे पास ये स्ट्रक्चर के अंदर एक दाना ये है, एक दाना ये है और दरमियान में स्ट्रिंग्स मौजूद हैं डीएनए के। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है यहाँ से लेकर हमारे पास यहाँ तक, ये ऐसे नजर आता है जिस तरीके से हमारे पास एक तस्बीह हो उस फॉर्म के अंदर जो है वो नजर आता है। जस्ट बीड्स ऑन स्ट्रिंग, मतलब कि जैसे तो हमारे पास तस्बीह के दाने हो, तो ये डीएनए का स्ट्रक्चर हमें ऐसे नजर आता है। जैसे ये हमारे पास ये मौजूद है न्यूक्लियोसोम, दरमियान में डीएनए, फिर न्यूक्लियोसोम, दरमियान में डीएनए, फिर न्यूक्लियोसोम, डीएनए, न्यूक्लियोसोम। तो ये हमें हमारे पास जो स्ट्रक्चर नजर आता है वो ऐसे आता है जैसे हमारे पास तस्बीह के दाने हों। अब जब ये क्रोमाटिन मटेरियल, ये जो हमारे पास ओपन फॉर्म के अंदर मौजूद है, ये क्रोमाटिन मटेरियल जब कंडेंस होता है तो ये कंडेंस होकर चेंज हो जाता है हमारे पास क्रोमोसोम। जैसे ये हमारे पास ये स्ट्रक्चर मौजूद है, इसे हम क्रोमोसोम कहते हैं और इसके अंदर हमें डीएनए नजर आ रहे हैं। और डीएनए एक्चुअली हमारी क्या है, डीएनए। अब इस जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर जो क्वेश्चंस बनते हैं, एक तो हमारे पास जेनेटिक की डेफिनेशन बनती है, दूसरे नंबर पर इनहेरिटेंस मीन्स क्या है, ट्रेट्स क्या होती हैं, जीन्स क्या है और न्यूक्लियोसोम्स क्या होते हैं। ये हमारा जो टॉपिक है इसके अंदर से ये हमारा, अब ये जो पूरा लेक्चर है इसको हम अब एक वीडियो की फॉर्म के अंदर जो है वो देखते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। ओके, अब हमारे पास ये एक सेल है, पूरा एनिमल सेल नजर आ रहा है और इसके सेंटर के अंदर हमारे पास क्या मौजूद है, हमारे पास न्यूक्लियस जो है वो मौजूद है। और इस न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्या मौजूद है, इस न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास जेनेटिक मटेरियल जिसको क्रोमाटिन जो है वो कहते हैं वो मौजूद है। और जब ये खुली फॉर्म के अंदर होगा तो उसे हम क्रोमाटिन कहते हैं। हमारे अंदर 23, और यहाँ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताता चलो कि जो 22 क्रोमोसोम्स होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं जो आपकी बॉडी को बनाते हैं। अब हमारे पास जो क्रोमोसोम है, अगर हम एक सेल देखें उसके सेंटर के अंदर न्यूक्लियस मौजूद है और सेंटर के अंदर ये इर्रेगुलर फॉर्म के अंदर हमारे पास जेनेटिक मटेरियल मौजूद है जिसको हमने नाम दिया है क्रोमाटिन मटेरियल का जो है वो नाम दिया हुआ है। और ये न्यूक्लियस मौजूद है और सेल की ये बाकी ऑर्गेनेलीज जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्या होगा, ये हमारे पास जो जेनेटिक मटेरियल है ये कंडेंस हो जाएगा और ये कंडेंस होकर किसके अंदर चेंज हो जाएगा, क्रोमोसोम्स के अंदर। अब इसकी कंडेंसेशन होगी और ये कब होगी, ड्यूरिंग सेल डिवीजन, और ये चेंज हो जाएगा हमारे पास रेगुलर फॉर्म के अंदर जिसे हम कहते हैं क्रोमोसोम। ये हाईली ऑर्डर स्ट्रक्चर होता है और हाईली कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। दोनों चीजें सेम है, क्रोमाटिड्स और क्रोमोसोम दोनों चीजें सेम है, लेकिन जस्ट यहाँ पर हमारे पास शेप्स का डिफरेंस है कि ये इर्रेगुलर फॉर्म के अंदर मौजूद है और ये हमारे पास रेगुलर फॉर्म के अंदर मौजूद है। अब जो हमने बात की थी क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स मौजूद होती हैं और वो जीन्स डीएनए बनाती हैं, तो ये हमारे पास वो जीन्स मौजूद हैं और इन जीन्स के अंदर क्या मौजूद होता है, हमारे पास डीएनए जो है वो मौजूद होता है। तो ये हमारे पास जीन्स हैं, ये जीन्स थी और उन जीन्स से हमारा क्या बना हुआ है, डीएनए जो है वो बना हुआ है। तो जीन्स कंटेन डीएनए, जो आपकी बुक के अंदर बात लिखी हुई है कि जीन्स कंसिस्ट ऑफ डीएनए। तो ये हमारे पास डीएनए मॉलिक्यूल मौजूद है, मतलब इसमें हिस्टोन प्रोटीन और कहते हैं हम लोग न्यूक्लियोटाइड
اور جو نیوکلیوٹائڈز ہیں، جو آپ کا جو ڈی این اے مالیکیول ہے وہ 3 یونٹ سے مل کے بنا ہوا ہے، اور وہ یونٹس کون سے 9th کلاس کے اندر ہم نے پڑھے تھے؟ ہمارے پاس رائبوز شوگر تھی، نائٹروجنس بیس ہے، اور 3 فاسفیٹ مالیکیولز ہوتے ہیں۔ تو اس ڈائیگرام کے اندر ہم نے یہ دیکھ لیا کہ ہمارا جو کروماٹیڈز ہوتا ہے ڈیورنگ سیل ڈویژن وہ چینج ہو جاتا ہے کروموسومز کے اندر۔ کروموسومز کے اندر ہمارے پاس کیا موجود ہوتی ہیں؟